Good morning, students. Here is another part of the dual nature of matter and radiation, that is the part 2. So, here are the laws of photoelectric emission. For a given photosensitive material, the frequency of incident radiation above the threshold frequency, the photoelectric current is directly proportional to the intensity of the light. So, it was discussed earlier also. Now, number 2, for the given photosensitive material, there exists a certain minimum cutoff frequency below which no photoelectrons are emitted, howsoever high is the intensity of the incident radiation. This frequency is called a threshold frequency. Number 3, the above the threshold frequency, the stopping potential or the equivalently the maximum kinetic energy of the photoelectron is directly proportional to the frequency of the incident radiation, but the independent of the intensity, as we know. Now, number 4, the photoelectric emission is the instantaneous process and the time delay is 10 to the power minus 9 second. So these are the 4 laws of photoelectric emissions. Now come to the Einstein's photoelectric equation. So we know the photoelectric effects. So Einstein explains that photoelectric effect on the basis of some mathematical formulas. So that is called as Einstein's photoelectric equation. Now let us suppose that here is some photon that is having the energy incident on this surface of matter. So this energy is utilized in the 2 ways. One utilized as to give the maximum kinetic energy the electron, and another part of that energy h nu is utilized in to work out the work function. Work function means to eject the electron from the surface of the metal. That is called as a work function. This is the energy required to eject the electron from the surface of metal. So this energy is utilized in these 2 ways now. So, and this is half mv maximum. This is the maximum kinetic energy. So this is the maximum kinetic energy. इसको आप उधर ले जाइए h nu minus nu naught. And यानी कि यहाँ जो h nu minus w naught is the h nu naught. The work function is also equal to h nu naught. And nu naught is the threshold frequency. तो आप इसमें पुट करेंगे यहाँ पर maximum kinetic energy half mv maximum square equal to h nu minus h nu naught. So this equation is called as Einstein's photoelectric equation. और ये जो चीज़ होती है ये दिस इक्वल टू ऑल्सो ई वी नॉट, जो कि हमने पहले कर चुके हैं. ठीक है. नाउ यहाँ पर देखेंगे अगर न्यू लेस देन न्यू नॉट होगा तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होगी, तो नो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस. When the nu greater than the nu naught, kinetic energy positive होगी. This kinetic energy will be positive. If this greater than this one, so emission of electron will takes place. Now here is some property. So that equation was the Einstein's photoelectric equation, half v mv maximum square equal to h nu minus h nu naught, and that is equal to e v naught also. Now come to the properties of photon. The frequency of the photon does not change from one medium to another. जब photon passes from one medium to another, frequency does not change. Speed of the photon changes with the medium. Speed of the photon, जैसे लाइट की स्पीड चेंज होती तो फोटोन की भी स्पीड चेंज होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में. रेस्ट मास ऑफ द फोटोन इज जीरो एज वी आर हैविंग द रिलेशन एम नॉट इक्वल टू एम स्क्वायर टू 1 minus v square upon c square. एम नॉट इज एम. तो फोटोन हैज मूव विद द स्पीड ऑफ द लाइट. So that's why this the m naught is 0. The rest mass of the photon is 0. It means photon is existing whenever it is moving. That's why either rest mass of the photon is 0. Now also we have, according to Einstein's mass energy relation, E equal to mc square, and E equal to also energy of the photon, that is h nu. M equal to h nu by c square हो गया. यहाँ पर ये हो गया. अब हम momentum of the photon p equal to m into c. c is the velocity of the photon, speed of the photon. h nu by c square रख दिया, ये कैंसिल हो गया. तो h nu by c हो गया. यहाँ पर न्यू को c by आपने लैम्डा रख दिया है, तो यहाँ पर c से कैंसिल h by लैम्डा. तो यानी कि मोमेंटम ऑफ द फोटोन इज गिवन बाय द h by लैम्डा. नाउ द डिटर्मिनेशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड द वर्क फंक्शन. तो जैसा कि हमने एक ग्राफ आपको पहले बताया था बिटवीन द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, तो उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर सकते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट एंड द वर्क फंक्शन ऑफ द मैटर.
Now come to the maximum kinetic energy given by h nu minus w naught. तो ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ई वी कैपिटल नॉट, यानी ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है एच न्यू, तो डब्ल्यू नॉट, तो वी ये जो आपका वी नॉट है जो कि आप स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं, तो ई से डिवाइड हो एच अपॉन ई इंटू न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट बाई ई. डब्ल्यू नॉट इज द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल. ओके, ना ये आपका ग्राफ है, या आप पहले भी जानते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, इस तरीके का कर्व होता है. तो ये जो स्लोप ऑफ द कर्व इज स्लोप ऑफ द कर्व. अब आप यहाँ देखेंगे, पहले इस इक्वेशन को देखेंगे. जब आप इस इक्वेशन को y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखें, तो ये जो है ये m मतलब स्लोप, तो दैट इज इक्वल टू एच अपॉन ई, एंड c मतलब दैट इज द इंटरसेप्ट मेड ऑन द y एक्सिस, तो दैट इज माइनस डब्ल्यू नॉट बाई ई. तो यही चीज़ आप यहाँ देख रहे हैं ऑन कंपेयरिंग. तो ये जो इंटरसेप्ट है माइनस डब्ल्यू नॉट बाई, एंड इसका जो स्लोप है एच अपॉन ई होगा. अब जैसा कि पता है स्लोप कैसे निकलता है टेन थीटा से, तो हम कोई दो पॉइंट ले लेंगे, एक ट्राइंगल कंप्लीट करेंगे ए बी सी, देन ए सी बाई बी सी, थीटा इज द एंगल. तो एंड दिस ए सी बाई बी सी इक्वल टू एच अपॉन ई. सो एच इक्वल टू ई टाइम्स ए सी बाई बी सी, और एच इक्वल टू ई टेन थीटा. इस फॉर्मूले से हम इस ग्राफ से हम स्लोप निकाल लेंगे और उसको ई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो प्लैंक्स कांस्टेंट आ जाएगा. दूसरी चीज़ जो डब्ल्यू नॉट डब्ल्यू नॉट बाई ई है वो ओ एम के बराबर है, दैट इज इक्वल टू ओ एम. सो डब्ल्यू नॉट इक्वल टू ई इंटू ओ एम. तो अगर आप ओ एम मेज़र कर लें तो आप वर्क फंक्शन निकाल सकते हैं बाय यूज ऑफ दिस ग्राफ. नाउ कम टू द डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन. ई इक्वल टू एच न्यू, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर, एज वी नो एच न्यू इक्वल एम सी स्क्वायर, एच सी बाई लैम्डा, क्योंकि न्यू इक्वल सी बाई लैम्डा एम सी स्क्वायर, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी और एच अपॉन पी. तो लैम्डा इक्वल टू हो गया एच अपॉन पी. तो दिस इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ पी कैन से. So this is the de Broglie wave equation, also de Broglie wave. Lambda is called a de Broglie. तो अब हम आगे चलते हैं इसमें आगे चलते हैं. तो फॉर द पार्टिकल अदर देन द फोटोन, अगर फोटोन नहीं है तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी होता है. अगर फोटोन है तो एम सी होगा, फोटोन नहीं है तो एम इंटू बी होगा. वी मतलब वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल, जैसे जस्ट लाइक द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है. तो फ्रॉम द डी ब्रॉगली इक्वेशन लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1 बाई पी, क्योंकि ये मोमेंटम है, एच तो कांस्टेंट होता है, ये पी है, तो लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1 बाई. अगर वी जीरो हो जाए तो लैम्डा इन्फिनिटी हो जाएगा. सो दैट वेव इज ओनली एसोसिएटेड विद द मेटेलिक पार्टिकल व्हेन इट इज इन द मोशन. क्योंकि लैम्डा इन्फिनिटी का मतलब इन्फिनिटी, जो इनफाइनाइट वेवलेंथ का मतलब कोई वेव एग्जिस्ट नहीं करती है. तो वेव तभी एग्जिस्ट करती है जब पार्टिकल मूव करता है. इसका मतलब मटेरियल पार्टिकल से एसोसिएटेड वेव तभी होती है जब वो पार्टिकल मूव करता है. नाउ थर्ड वन, द डी ब्रॉगली वेव इज नीड नॉट चार्ज. डी ब्रॉगली वेव में जरूरी नहीं कि कोई चार्ज हो. डी ब्रॉगली वेव में जरूरी नहीं कोई चार्ज हो, कोई भी पार्टिकल मटेरियल पार्टिकल हो सकता है. डी ब्रॉगली वेव्स आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्योंकि बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सेलरेटिंग द चार्ज. ठीक है ना. और वहाँ पहले बोला डी ब्रॉगली वेव इज नीड नॉट द चार्ज. नाउ द डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन, सॉरी वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन. तो हमको पता हाफ एम वी स्क्वायर पी स्क्वायर बाई 2m होता है. वर्क डन ऑन द इलेक्ट्रॉन वी कैन से ई इंटू वी, अगर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाए. ठीक है ना. तो यहाँ पे k बराबर पी स्क्वायर बाई 2m, दैट इज इक्वल टू ई इंटू वी. तो यहाँ से आपका ये आपका, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी को हमने k लिख दिया पी स्क्वायर बाई 2m एंड दैट ऑल्सो इक्वल टू ई इंटू वी. तो यहाँ पर ये v है, कट ऑफ पोटेंशियल नहीं है, देयर इज अ सिंपल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैथोड एंड एनोड यू कैन से. तो p इक्वल स्क्वायर रूट 2m के अगर इन दोनों को लेते हैं, और यहाँ पर अगर हम इन दोनों को लें इस साइड वालों को, तो p बराबर होगा स्क्वायर रूट 2m ई वी. अगर हम इन दोनों को लेते हैं तो p इतना होगा, इन दोनों को लेते हैं तो p इतना होगा, क्योंकि तीनों बराबर है. तो यहाँ पर लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी होता है, तो एच अपॉन स्क्वायर रूट 2m के होगा, या एच अपॉन स्क्वायर रूट 2m ई वी होगा. तो नाउ ऑन पुटिंग द वैल्यूज, अगर आप h की वैल्यू लिख देते हैं, m की मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज लिख देते हैं, तो ये आप इलेक्ट्रॉन के लिए जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं. दैट विल बी द 12.27 स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल V इज द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल एंड एंगस्ट्रॉन. So this is
for all 12 nature of matter of radiation. Thank you.